Hello students, welcome back to BSc Point. So in previous part we have done binary partners and types of partner. From today we will start with types of partnership. Partnership form can be categorized on the basis of duration and on the basis of liability. If we talk about on the basis of duration, means we have two types of partnership firm. Partnership at will and particular partnership. Partnership at will continues till partner agree to do so. यानी कि जब तक पार्टनर चाहेंगे तब तक पार्टनरशिप फॉर्म चलेगी. That is partnership at will. And if we talk about particular partnership from the name itself, it specifies what does it mean. A partnership form for a specific जो किसी particular task के लिए बनाई गई वो that is for a project for a specific period of time. तो वो आपकी particular partnership होती है and it comes to an end after completion of that task or for expiry of time. यानी कि जब तुम्हारा time जो है वो finish हो गया और हमारे पास जो complete हो गया तो partnership automatically अपने end हो जाती है. Classification on the basis of liability, we have first that is general partnership. General partnership are the partnership where all the partners have joint and अनलिमिटेड लाइबिलिटी जहाँ पे सारे पार्टनर्स एक आते हैं और उनकी लाइबिलिटी अनलिमिटेड होती है. एंड इफ इट अबाउट लिमिटेड पार्टनरशिप में partners have a limited liability and at least one partner must have unlimited liability. इसमें आप जहाँ पे कह जैसे जॉइंट हिंदू होता जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस में भी ऐसा ही कुछ होता है. That is not a partnership firm, but it is a different type of business. But मैं बता ऐसा हम ले सकता है कि join in the family business में भी सारे members की liability जो होती है limited होती है, लेकिन जो हमारा करता होता है that is a elder member of the family as liability that is unlimited. उनकी उसकी liability होती है जो unlimited होती है. इसके बाद अगर हम बात करें partner should be very important. इसमें से ऐसी क्वेश्चन कम पूछे जाते हैं लेकिन चांसेस हैं कि इस बार पूछे जाए इसको इसके थ्रू. A written document. Partnership need होता क्या है? It is a written document where all terms and conditions of partnership are mentioned. Generally as the following clauses. इनकी पार्टनरशिप डीड एक डॉक्यूमेंट होता है जिसमें सारे टर्म्स एंड कंडीशन पार्टनरशिप फॉर्म की लिखी होती है. कौन कैसे पार्टनर एडमिट होगा, कौन सा पार्टनर एडमिट हुआ, कितने पे रिटायरमेंट है, क्या सैलरी, क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा, क्या लोन का रेट है, किस बेसिस पे पार्टनर लीज कर सकते हैं, क्या डिसीजन, ये सारी चीजें इसमें आती है. इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जो मेंशन होती ही होती हैं. दैट इज फर्स्ट इज नेचर ऑफ फॉर्म. फिर आपके पास ड्यूरेशन ऑफ पार्टनरशिप, ड्यूटीज एंड ऑब्लिगेशन ऑफ पार्टनरशिप, वैल्यूएशन ऑफ एसेट्स, interest and capital and interest on drawing उनका rate जो है, profit and loss sharing ratio, salary and withdrawals of partner, preparation of accounting and their auditing, procedure for dissolution of method of solving disputes, ये सब चीजें उसमें include होती है. अब बात करते हैं रजिस्ट्रेशन की, मतलब पार्टनरशिप फर्म को कैसे रजिस्टर करवा सकते हैं. सो इट इज ऑप्शनल फॉर अ पार्टनरशिप फर्म टू गेट रजिस्टर्ड विद द रजिस्ट्रार. यानी कि इट इज नॉट कंपल्सरी फॉर द पार्टनरशिप फर्म टू गेट रजिस्टर्ड अंडर रजिस्ट्रार. He can or he cannot. It is not compulsory for it. From the state in which home is situated. Yeah. Consequences of non-registration. लेकिन अगर पूरा रजिस्ट्रेशन करवाना है, but it is preferably said that you can ही रजिस्टर करवानी ही चाहिए अपनी फॉर्म को. लेकिन अगर तुम रजिस्टर नहीं करवाते हो तो उसकी क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस या इफेक्ट्स तुम्हारे को देखने को मिल सकते हैं. इन केस ऑफ नॉन रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्टनर, आप तुम्हारे फॉर्म रजिस्ट्रेशन नहीं है, अंडर रजिस्टर्ड रजिस्टर्ड नहीं है तो पार्टनर जो है कैन नॉट फाइल case of file suit against other partner of partnership firm. यानी कि उस particular firm का partner firm से related topics with केस नहीं फाइल कर सकता, तो किसी और पार्टनर के खिलाफ केस नहीं कर सकता. लेकिन अगर रजिस्टर्ड होता तो he can file the case. Our second point, the firm cannot sue third parties, वो third parties को नहीं ले सकती. The firm cannot file a case against one or more partner of the firm. अब firm भी किसी भी partner
या एक पार्टी या ग्रुप ऑफ पार्टनर्स के खिलाफ केस नहीं कर सकती। ये सारी चीजें हैं। अगर आप रजिस्ट्रेशन करवा लेते हो तो ये आपके लिए अनलॉक्ड हो जाती है, लेकिन इफ यू डू नॉट रजिस्टर योर फॉर्म अंडर रजिस्ट्रार देन they are locked for you the partnership form. Now, what is the procedure of getting your form registered and a registrar for the form? Submission of application in the prescribed form with the registration of registrar of the form. And you have to submit an application in a prescribed form there. Then you have to deposit your fee with the registrar. You will receive a certificate of registration after the registrar is satisfied. He will not give you directly the certificate of registration. He will do all of this research and all the things, verify all the documents. After that, he will be giving you, when he will be satisfied, he will be giving you the certificate of registration. Now we are talking about the fourth type of business organization that we first learned from the NCERT part. So we have cooperative societies here. The word cooperative means working together and with others for a common purpose, यानी कि एक साथ काम करना किसी common purpose के लिए. That is for cooperative society, यानी कि आप एक group of people आते हैं, एक साथ काम करते हैं और किस ऑब्जेक्टिव के लिए काम करते हैं, विद कॉमन पर्पस. जो कॉमन बेसिकली ही कह सकते हो एक सोसाइटी है, उसके 4-5 लोगों को यहाँ पे क्लीनिनेस की प्रॉब्लम है. फॉर एग्जाम्पल ले रहा हूँ कि क्लीनिनेस की प्रॉब्लम है, सो दे कैन मेक अ ग्रुप, वी कैन मेक अ कोऑपरेटिव सोसाइटी, कैन वर्क फॉर दैट पर्टिकुलर कॉज दैट इज क्लीनिनेस. उसके लिए वो काम कर सकते हैं. So that is what cooperative society is. Cooperative society is a voluntary association of persons who are joined together with a motive of welfare. तो ये बनता किस लिए? वेलफेयर के लिए बनता है, अपने मेंबर्स की वेलफेयर ऑफ द मेंबर्स, यानी कि जो भी उस कोऑपरेटिव सोसाइटी के मेंबर्स हैं उनके लिए ये बनता है. दे आर ड्राइवन बाय नीड टू प्रोटेक्ट द इकोनॉमिक इंटरेस्ट. उनके इकोनॉमिक इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए इन फेस ऑफ पॉसिबल एक्सप्लॉयटेशन एट द हैंड ऑफ मिडलमैन ऑब्सेस्ड विद डिजायर टू अर्न प्रॉफिट्स. यानी कि जो लोग, जैसे आपका हो गया कि महंगाई बहुत बढ़ रही है मार्केट में, तो what कुछ लोगों ने अपनी कोऑपरेटिव सोसाइटी बना ली, हमको उनके इकोनॉमिक इंटरेस्ट से प्रोटेस्ट करके उनको कम रेट में दे दिया, और जिससे वो मिडल मैन के जो ऑब्सेशन है उनको एक्सप्लॉयटेशन, किसके एक्सप्लॉयटेशन की आप बात करें? मिडल मैन की, उनसे जो कि तुमसे सारा पैसा कमाते ऑन ग्रेटर प्रॉफिट कह सकते हो, वो चीज से बचाने के लिए, इकोनॉमिक इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए, किसके उसके मेंबर्स के इकोनॉमिक इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए कोऑपरेटिव सोसाइटी फॉर्म होती है. अगर मैं बात करूँ कोऑपरेटिव सोसाइटीज जो है that are registered under Cooperative Societies Act 1902. इसके बाद अगर हम बात करें फीचर्स की, तो वॉलंटरी मेंबरशिप इज द फर्स्ट पॉइंट. एनी इंडिविजुअल irrespective of their caste, यानी कि उनकी क्या कास्ट है, जेंडर क्या, मेल फीमेल, अदर्स, रिलीजन, विद कॉमन इंटरेस्ट, यानी कि कोई भी रिलीजन हो जिनका कॉमन इंटरेस्ट है, इनके अगर क्लीनिनेस के ऊपर टॉपिक है, तो क्लीनिनेस पे जितना भी जिनका भी क्लीनिनेस मोटिव है, दे कैन जॉइन दैट पर्टिकुलर cooperative society, and it is free to join or leave a cooperative society. जब चाहे आ सकता है और जब चाहे वो उस कोऑपरेटिव सोसाइटी को लीव कर सकता है. अगर बात करें लीगल स्टेटस की, तो कोऑपरेटिव सोसाइटी से सेपरेट आइडेंटिटी स्टेटस, यानी कि ये एक अलग ही है, डिस्टिंक्ट फ्रॉम इट्स मेंबर, यानी कि इसके मेंबर्स आर नॉट, जैसे ये कोऑपरेटिव सोसाइटी है, कोऑपरेटिव सोसाइटी के मेंबर्स हैव अ सेपरेट लीगल आइडेंटिटी, यानी कि दोनों अलग अलग चीजें हैं, यू आर नॉट द वन. अगर बात करें इसकी रजिस्ट्रेशन की, तो इसकी रजिस्ट्रेशन इज ऑल्सो मैंडेटरी कंपल्सरी. लिमिटेड लाइबिलिटी, यानी कि इसके मेंबर्स की लाइबिलिटी जो है दैट इज लिमिटेड टू द कैपिटल, तो कितना कैपिटल उन्होंने कोऑपरेटिव सोसाइटी में लगाया हुआ है. बात करें कंट्रोल की, यानी कि मैनेजमेंट पार्ट की जो सारी डिसीजन मेकिंग पावर इज इन टू हैंड ऑफ एन इलेक्टेड मैनेजिंग कमेटी, यानी कि उस
कोऑपरेटिव सोसाइटी में एक कमेटी मैनेजिंग कमेटी को इलेक्ट किया जाएगा जो कि उसके मेंबर्स के थ्रू ही किया जाएगा और क्या सिस्टम फॉलो होगा वन मैन वन वोट कॉन्सेप्ट के हिसाब से वोटिंग होगी। सर्विस मोटिव की बात करें तो उनका मोटिव क्या होता है वेलफेयर ऑफ द पीपल उनका इकोनॉमिक उनके टीम मेंबर्स की इकोनॉमिक इंटरेस्ट सोशल नीड को हेल्प आउट करने के लिए म्यूचुअल हेल्प करने के लिए ये फॉर्म की जाती है। अगर मैं बात करूं मेरिट्स की अगर मैं इसके मेरिट्स की बात करूं तो सबसे पहला मेरिट है दैट इज इक्वालिटी इन वोटिंग स्टेटस यानी कि each member has equal right to vote and elect a member of managing committee यानी कि one person one vote वाली बात हो गई। limited liability partners की limited है the capital for contribution है stable existence के बात करूँ तो cooperative society keep on going irrespective of the situation of death यानी कि वो चलती रहती है in respect of ban corruption के चाहे ban corruption हो या किसी पार्टनर की डेथ हो या insanity of a member it will be keep going। Fourth है economy on the operation में member of society work voluntary helps in reducing costs यानी कि efficiency चलती है for a better support from the government provides support to the society वो उन societies को support provide करते हैं in the form of lower tax उनसे lower tax interest rates और subsidies इनको provide की जाती है। Formation of the cooperative society is very easy. No legal formalities are much involved. But as you all know, registration is compulsory of a cooperative society in order to get the benefits like lower tax, interest rate subsidies. This is all. That's when registration is compulsory. If we talk about limitations of cooperative societies and forces limited resource, capital contribution by the member is the only source of finance क्योंकि जो भी जितने भी पार्टनर्स उनके द्वारा जितने भी कैपिटल तो हमारी कोऑपरेटिव सोसाइटी में लगी है वो ही हमारे पास फाइनेंस का सोर्स है और उसमें भी लो डिविडेंड आल्सो डिस्करेज मेंबर फॉर द प्रोविजन ऑफ फाइनेंस टू द सोसाइटी यानी कि तुम्हारे को उस पे भी लो डिविडेंड मिलता है इस वजह से मेंबर्स डिस्करेज होते हैं और पैसा लगाने के लिए। Inefficiency in management की बात करूँ तो members working on a voluntary basis may lack expertise and skills यानी कि voluntary basis पे जो member work कर रहे हैं उन पे उतनी skills और expertise नहीं है जैसे inefficiency in operations हो सकते हैं management decision सही नहीं लिए जा सकते हैं। lack of secrecy के बारे में क्योंकि जहाँ पर ग्रुप टू होता है वहाँ पे सिक्योरिटी मेंटेन करना वेरी डिफिकल्ट है। डिस्क्लोज ऑल द इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू वर्क ऑफ सोसाइटी इन द मीटिंग उनको सारी इंफॉर्मेशन अपनी मीटिंग पे डिस्क्लोज करनी होती है। गवर्नमेंट कंट्रोल की बात करूँ तो उन सोसाइटीज को रूल्स एंड रेगुलेशंस को पूरा फॉलो करना होता है जो गवर्नमेंट के थ्रू लागू की गई है। सबमिट ऑडिट फाइनेंशियल रिपोर्ट्स करनी होती है of the society. However, such government intervention affect the freedom of such societies कि गवर्नमेंट के इंटरवेंशन से इनका इफेक्ट जो है काम करने का सोसाइटीज का वो इफेक्ट होता है। डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन क्योंकि हम पे मैनेजिंग कमेटी का अलग किया जाता है तो उससे कॉन्फ्लिक्ट से हो सकता है बिकॉज ऑफ एवरी पर्सन हैज अ डिफरेंट POV। As we talked about, we have some types of cooperative society. Consumer cooperative society first is a society formed for providing good quality services and products at a reasonable rate to protect the interest of the consumer. Next thing if we talked about that is producer cooperative society. इसमें क्या होता है? Now we have a joint stock company that is another type of form of business organization. If we talk about from NCRT, a joint stock company is an association of a person formed for carrying out business activity and has legal status independent of its member. A company can be described as an artificial person having separate legal identity यानी कि किसके members के साथ जो है रहता separate legal identity perpetual succession होता है common seal होती है that is all what a company has। Basically company is a artificial person
and a person having a separate legal identity from its member, a perpetual succession of common share of company or form of organization is governed by under Companies Act 2013 and as per section 2 subsection 20 of Act 2013, a company is a company incorporated under the Act or any other previous law. इसमें क्या होता है ना शेयर होल्डर्स आर द ओनर्स जो शेयर्स कंपनी के शेयर्स होते हैं उसको कैपिटल को स्मॉल पार्ट में डिवाइड कर दिया जाता है जिनको हम शेयर्स की फॉर्म में परचेज करता है और हम शेयर होल्डर्स कहलाते हैं आर द ओनर्स ऑफ द कंपनी बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और इसमें इतने शेयर होल्डर्स होते हैं जो इसके एक्चुअल ओनर्स होते हैं जो हम परचेज करते हैं मीन्स अगर हमने किसी भी कंपनी के शेयर्स परचेज करें then we are the shareholder of that company and we are the owner of that company whereas a board of director are the chief managing bodies they are elected by the shareholder itself यानी कि हम लोगों में से ही ग्रुप of shareholders जो है उनको elect करते हैं chief managing body को board of directors जो basically decisions लेते हैं कि हम अपने shares को अगर publicly sell out कर रहे हैं तो इतने सारे लोगों को कंपनी का डिसीजन मेकिंग देना इज नॉट पॉसिबल तो इसलिए यहाँ पे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को चूज किया जाता है जो चीफ मैनेजिंग बॉडी होता है जो कौन इलेक्ट करते हैं हम शेयर होल्डर्स ही इलेक्ट करते हैं तो कंपनी के सारे डिसीजन लेती है यूजुअली द ओनर्स एक्सरसाइज एन इनडायरेक्ट कंट्रोल ओवर द बिजनेस वही बात कह दी कि इनका इनडायरेक्ट कंट्रोल होता है ये इलेक्ट करती है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को उनका डायरेक्ट कंट्रोल होता है ओवर द कंपनी और जो वही बात है द कैपिटल ऑफ द कंपनी इज डिवाइडेड इनटू स्मॉलर पार्ट्स उनको हम शेयर्स कहते हैं जो कि फ्रॉम वन शेयर होल्डर टू अनदर कैन बी ट्रांसफर्ड बट इट इज एन एक्सेम्पशन इन प्राइवेट कंपनी इट्स ठीक है private company में ऐसा नहीं होगा है if we talk about the features of the same joint stock company then at first is artificial person a company is created by the law and has a legal status यानी कि law के through ये बनी है इसका कोई legal status भी है but it does not function like a human being as it is an artificial person having legal identity perpetual succession common seal although is not function like a human being all business activities are done by the board of directors in the name of company has a separate legal identity, has its own identity distinct from its member, owners, and shareholder formation के बाद पर under Companies Act 2013 with some legal formalities, fulfilling legal formalities it can form. Perpetual succession मतलब a company is created by the law and can be bound up by the law only यानी कि law से ही बनी है law ही इसे खत्म करेगा. Existence of a company is not affected by the status of the member and each time member की bankruptcy हो कुछ भी होना तो I से कंपनी के एग्जिस्टेंस को कुछ इफेक्ट नहीं होगा कंट्रोल की बात करें तो इसका कंट्रोल जो आर्टिस्ट बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जिनको हम मैनेजिंग कमेटी भी कहते हैं दैट आर इलेक्टेड बाय शेयर होल्डर ओनली लायबिलिटी इनकी लिमिटेड होती है लायबिलिटीज ओनली टू द एक्सटेंट ऑफ द कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूशन जिसने जितना कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूट करा उस हिसाब से इनकी लायबिलिटी होती है कॉमन सील की बात करें तो कंपनी इज एन आर्टिफिशियल लीगल पर्सन कैन नॉट हैव अ साइन on its own, hence common seal act as an official signature. Common seal यानी कि कोई भी official document है तो common seal यानी कि उसका कंपनी का signature होना चाहिए. अब हर board of director तो उसका signature का दिखाना है. So former किसी कंपनी जो आर्टिफिशियल पर्सन है कैन नॉट हैव अ हैंड रिटन वो अपने आपसे तो साइन करने से बी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर डिसाइड अ कॉमन सील फॉर द कंपनी दैट एक्ट एज अ ऑफिशियल सिग्नेचर फॉर द कंपनी एंड ऑल द ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स मस्ट हैव अ कॉमन सील फॉर द लीगल बाइंडिंग वो भी लीगल आगे कार्यवाही हुए लगे तुम्हारी कंपनी पे तो इस वजह से कॉमन सील ऑफिशियल सिग्नेचर मस्ट बी देयर इसके बाद शायद फॉरेन रिस्क बियरिंग की द रिस्क ऑफ द लॉस इज शेयर्ड बाय ऑल द शेयर होल्डर्स यानी कि जो रिस्क है वो सारे शेयर होल्डर्स बेयर करेंगे ना प्रपोर्शन टू द इन्वेस्टर इन द कंपनी यानी कि अगर मैं बंदा हूँ तो मैंने अगर रिलायंस पर 50 शेयर्स खरीदे 500 मानो मैंने 500 शेयर्स खरीदे और आज 100 रुपए की वैल्यू है प्रत्येक शेयर की तो
होगा 50,000 कि मैंने शेयर खरीदे 500 शेयर खरीदे तो 100 रुपए की एक वैल्यू है एक शेयर की और फिर कंपनी को लॉस होगा तो उसका लॉस जो हमारे को भी झेलना पड़ेगा हमारे शेयर की जो है वैल्यू वो कम हो जाएगी उस ऑफर ये जितना भी लॉस हुआ दैट इज डिवाइडेड प्रोपोर्शन to the investment in the company क्या शेयर्स के साथ से वो कम हो जाएगी वैल्यू ऑफ दी शेयर्स अगर हम बात करें उसके मेरिट की तो इसमें liability of the partner is limited transfer of interest means shares can be easily sold in a market or can be converted into cash and कि तुमने चलाने लाइन्स के शेयर्स खरीदे हैं तो मैं उनको easily अब मैंने 100 रुपए में खरीदो अब उनकी वैल्यू 200 हो गई तो मैं हम बस आप कि मैं इनको मार्केट में भेजू तो मैंने मार्केट में भेज दूँ ना 200 रुपए के हिसाब से मेरे को 100 रुपए का प्रॉफिट हो जाएगा या मैं इनको डायरेक्टली विड्रॉ भी करा सकता हूँ परपेचुअल एग्जिस्टेंस यानी कि कंपनी एफेक्ट नहीं होती किसी पार्टनर की कंडीशन से चाहे वो मारे चाहे वो जिए चाहे वो उसके बैंक करेंसी हो ठीक है A company continues to exert a scope for expansion and the company can raise a large amount of funds from the public as well as the borrowing from the financial institution. And you will loan वगैरह लेकर ही अपनी expansion कर सकती है professional management की बात तो इसमें management to an artist profession सारे skill expertise बंदे होते हैं board of directors होता है जो decision लेते हैं company के regarding में ठीक है इसी आधार अगर लिमिटेशंस की बात करते हैं लिमिटेशन है सबसे पहले लिमिटेशन है आर्टिस्ट complexity in formation a formation of a company requires fulfilling the documentation यानी कि बहुत लंबा प्रोसेस है इसको फॉर्म करने के लिए लीगल डॉक्यूमेंट्स में सारे वेरिफिकेशंस की जरूरत है लीगल फॉर्मेलिटीज हैं जिसके प्रोसेस को लेंथी कॉम्प्लेक्स टाइम कॉस्टली बना देता है लैक ऑफ सिक्योरिटी की बात करें तो सारी क्योंकि फिर से वही बात है ग्रुप आ जाता है तो लोगों को पेटना बात नहीं टिकती इस वजह से सिक्योरिटी जो सीक्रेट कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन का सीक्रेट वो कम हो जाता है इम्पर्सनल वर्क एनवायरनमेंट का मतलब होता है बिजनेस अफेयर्स आर मैनेज बाय द प्रोफेशनल्स जो है आपके डिसीजंस जो है वो प्रोफेशनल्स लेते हैं नॉट ओनर्स ओनर्स होने तो शेयर होल्डर और प्रोफेशनल कौन से यहाँ पे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बोर्ड डिसीजंस लेते हैं नॉट योर शेयर होल्डर प्लस दैट पर्सनल कॉन्टैक्ट विद द एम्प्लॉयर एंड कस्टमर्स Numerous regulations guard the Moda company involves various rules and regulations which reduce freedom to work and involve lot of money, time, and cost and efforts. And it बहुत लंबा है lengthy है company energy खड़ी करना is not a simple process. It is very difficult to start a company और इसको चलाना long term के लिए बहुत difficult है. I'm back to the next one. Get artists delay in decision making. Decision making needs to follow a set of ART which may cause delay in decision making. Decision making ऐसे ऐसा हम competitions नहीं बैठेंगे नहीं. It requires a time. ये सभी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अगर एग्री हो गए तभी जो है डिसीजन मेकिंग लिया है सभी एग्री होने चाहिए इस वजह से डिले हो जाता है डिसीजन मेकिंग में Oligarchic management, this is a very important point. Can be asked in your paper. Shareholders have little control over the running of the business. यानी shareholders के पास क्या काम अभी तक जो मिलन कि वो सिर्फ मैनेजिंग कमेटी यानी कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को इलेक्ट करेंगे उसके अलावा उनका कोई काम नहीं है तो इस वजह से उनका जो little control over the business directors take all the decision which may then get influenced by the personal interest यानी कि आप वही कि अपने मुनाफे के लिए काम कर लेता है पर्सनल इंटरेस्ट बेसिकली बाहर आता है प्रॉफिट अब बात करें कॉन्फ्लिक्ट एंड इंटरेस्ट की तो इट इज डिफिकल्ट टू फाइंड एंड फॉर satisfy everyone as there are too many stakeholders with diverse events you need to stakeholders and other आपका ओनर्स ऑफ द बिजनेस ऑन डिफिकल्ट हो जाता है बोर्ड डायरेक्टर्स के लिए कि यार एक स्टेल होल्डर की नीड को satisfy कर रहे हैं because there are many stakeholders with diversify interests. Next part that is types of company which we will do in our next part. That is all for today. Till then, take care and bye bye. And do not forget to subscribe our channel. BSC Points. We're doing a lot of hard working for you all. So till then, take care. Bye bye.